उसके भाषिक अवचेतन में ये सारे आंदोलन चुपचाप दर्ज होते रहते हैं। जो एक सम्मान होना चाहिए लोक और श्लोक दोनों का, खास करके साहित्य और कला में, बिल्कुल, वो आपके लेखन में दिखता है। तो चिमनी स्वीपर में समझाना पड़ता है कि एक चिमनी थी, मेरे तुम्हारे बीच के जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं या जितने मीठे संबंध होते हैं, उसमें जितनी तरह की उठापटक घटती है, उसकी एक तरह से हमारे यहाँ बड़ी रोचक अभिव्यक्ति, और इसलिए मुझे वो अच्छी लगती थी। तो सीता लगभग एक तरह से उनको डांटते हुए कहती हैं कि आप वनवास में हैं, और जब आप वन के साथ तारतम्य नहीं बना पाएंगे तो आप वनवास का क्या मतलब? कि जो मैं ऐसे कभी नहीं समझती, क्योंकि मेरी उतनी ट्रेनिंग का मेरी है ही कहाँ, ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन होता है जीवन में कुछ अजीब सा होता है कभी कभी। भीतर तो प्रेम है, ऊपर आवरण चाहे जो हो, कॉन्ट्रडिक्शंस इसलिए खुद को 10 रूपों में तोड़ती है ना पार्वती ये कहानी। तो हमारे जो जिसको लाकां कहते थे मल्टीपल सेल्व्स। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट द थेरी आस्क्स कौन से द्वार पर बैठे हो निर्वाण। यस, एंड आई थिंक दैट क्वेश्चन, the framing of that question itself makes me emotional. I've read some of the travelogues that the early women travelers like Pandita Ramabai and Hardevi and others who, when the Suez Canal opened. And which is why all those beautiful Chhat songs, Yes, dedicated to Ma Ganga. Yes. Where there's Everything. a dialogue, there's rage, Yes. there is resolution. Right. Yes. And Parvati, when Shiv goes on all these long, tapasya, she creates a child out of her own Right. without any his consent. And every space has a particular kind of time tethered to it. So this whole idea of looking deep into the eyes of time. More than those writers, there are particular poems which have stayed with me in the gloomiest moments of my life, and they have delivered me afresh. I feel they have taken me back to their womb and they've delivered me afresh. Actually, अगर कोई गहराई से उसकी आपके लेखन की राजनीति देखे तो वो इन सबसे ऊपर उठ चुका था है। तो आपने कैसे देखा उस पूरी कंट्रोवर्सी को? और तो इस भाव से मतलब ये तो अगर कोई पीआर फर्म हो तो उसके लिए सूत्र वाक्य Hello and welcome to the special series of Shabda Vishwa, where we try and explore the hidden and the visible undercurrents in the art and literature world of our times. Today in conversation we have an academic, a chronicler of our times, a translator, but most importantly a poet whose silence is as political as her politics is of silence. In conversation today we have Anamika ji, a weaver of words, a chronicler of the invisible labor of women, and someone who really fuses the domestic and the political with such grace that it is very unsettling to define her feminism and the politics that she deals with. Right from Theri Gatha, which Tokri Mein Digant, which got her the much acclaimed, should I also say controversial? Award by Sahitya Akademi, the first ever to be bestowed upon a woman poet, and to Trinidhari Ode, where she has dealt with the divine, the domestic, the feminine, and the wild and the beautiful nature of the Indian feminine, which is very strong, unflinching, but with full of resolve. Today we'll try and unpack all of these and many more with one of my favorite writers of our time, Anamika. Hello. Nice being here, Suprashta.
अनामिका जी, हिंदी की जो दुनिया है वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि स्मृतियाँ धूल की तरह सेटल होती हैं, और बहुत कम लोग होते हैं जो धूल पे उंगलियां उकेर कर आइपन बना सकते हैं। अरे आपने वो काम किया है, और मैं इसलिए ये कह रही हूँ क्योंकि बहुत शौक़ से और बहुत चाव से अगर हम हिंदी की दुनिया देखें तो मुझे लगता है आप एक लोन वॉरियर की तरह आप खड़ी होकर के अपनी बात रख रही हैं, जिसमें विरोध ज़रूर है, जिसमें स्वीकार्यता भी है, और ये विरोध चीज़ों को अनसेटल करने का नहीं है, ये विरोध चीज़ों के साथ समन्वय स्थापित करने का है, और मुझे लगता है कि ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी परिप्रेक्ष्य में हम आपके नारी दर्शन को भी देखते हैं। मैं थोड़ा चाहूँगी कि आप इसको अनपैक करें। और आपने जिस रूपक का प्रयोग किया, मैं उसी को आगे बढ़ाती हुई अपनी बात रख सकती हूँ शोभा। होगा क्या कि धरती जैसे है, मेमोरी के भी क्रस्ट्स होते हैं, उसके 3-4 लेयर्स होते हैं। तो तुमने जिस क्रस्ट की बात की, ऊपरी धरातल पे धूप है, एक उड़ता हुआ सा आकाश है, उसके नीचे जो सेडिमेंटरी रॉक है जिसमें कई परतें हैं, और उसके नीचे जो आग है जो वोल्केनिक इरप्शन देता है। कोई भी, मैं ही नहीं, तुम भी, जितनी भी स्त्रियां हैं जो किनारे पे खड़ी हैं और बस देख रही हैं, देखती आई हैं सदियों से, वो धरती के इन तीनों मूड्स को अपने भीतर समाती रही हैं। और जैसे हमारा अवचेतन होता है वैसे भाषा का भी अवचेतन होता है। तो जिसको बहुत बोलना नहीं संभव हुआ, जिसको बोलने नहीं दिया गया, जो खामोश रहा किसी कारण से, उसके भाषिक अवचेतन में ये सारे आंदोलन चुपचाप दर्ज होते रहते हैं। बचपन में मेरी दादी एक कहानी सुनाती थी, आजा पाजा कान में समा जा। तो वो एक ऐसी राजकुमारी की कहानी थी जिसको उसके पिता ने या भाई ने घर से निकाल दिया था, क्योंकि वो सारा राजकोष इधर उधर लुटाती रहती थी। तो सोचते थे लोग कि ये पागल है। तो वो उसका बहुत सुंदर वर्णन करती थी कि वो कैसे कैसे जंगल के रास्ते अपनी माँ को ढूंढने, जैसा होता है लोक कथा में, माँ उसकी कहीं और पहले भेज दी गई थी या फिर मृत्यु की राह से कहीं अनंत में चली गई थी। तो माँ के पीछे माँ को ढूंढती हुई चलती है। तो रास्ते में उसको जो पेड़ पौधे, चिड़िया और दूसरी तरह के जीव जंतु मिलते हैं जो उसी की तरह बेघर हो गए हैं, संबोधित करते रहते हैं और उसको छोटी छोटी अपनी शिकायतें सुनाते रहते हैं। तो जैसे कि एक शिकारी आया था वन में, तो घोंसला उजड़ गया था, चिड़िया बेघर हो गई थी। तो चिड़िया बोलती है कि देखो ना, मेरा घर नहीं है, मुझे कहीं रख लो ना। ऐसे ही मधुमक्खी का घोंसला था, नीचे किसी ने आग जला दी थी, वो भी बेघर हो गई थी। पूरा एक मेटाफर था, मतलब सस्टेन्ड मेटाफर। तो वो अब तो खुद ही बेघर थी, वो किसको आश्रय देती? तो वो कहती थी, आजा पाजा कान में समा जा। तो मुझे वो दादी गा के सुनाती थी। इतना मुझे वो अच्छा लगता था कि जिसका कोई घर नहीं है, जिसको किसी सीमा में नहीं बांधा गया, जो निस्सीम हो गया, उसके कान में अनहद की तरह ये सारा संसार समाया जाता है। उसके कान में, उसकी श्रुति में इतना कुछ समा गया कि सारा कुछ बचा ही नहीं, चहचहाहट भी, भुनभुनाहट भी। तो ये होता है स्त्री का अवचेतन। आजा पाजा कान में समा जा, सिर्फ देखने से और समय का इंतज़ार करने से कि जब बोल सके। वो एक लंबा समय गुजर जाता है सिर्फ आँख खोल के देखते हुए, और उस समय का इंतज़ार करते हुए जब हम
अपने माध्यम से अपनी ही बात नहीं बल्कि उन सारे जीव जंतुओं की बात जो हमारे अवचेतन में समाये हैं, जो उतने ही बेघर हैं, अनादृत हैं, उनकी बात हम कह सकें, उनकी भाषा में कह सकें। तो जो तुमने कहा वो सिर्फ मेरे लिए लागू नहीं है, जितनी भी मेरे जैसी साधारण स्त्रियां हैं उन सब के मन की वो बात है, और एक सामूहिक इयत्ता है उसकी, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से वो बात आती है। और जैसा कि हमारे दर्शन में कहते हैं कि उन्मेष और निवेश, सांस की जो गति होती है वो अपने से बाहर पहले जाना और फिर उल्टे पांव लौट आना, सृष्टि ऐसे ही बनी है। पहले आदमी सवालों के उत्तर ढूंढता हुआ अपने से बाहर जाता है, बाहर की दुनिया देखता है, फिर लौट के उल्टे पांव अपने भीतर आता है और समाधिस्थ हो जाता है। वो सोचता है अपने भीतर बैठा बैठा, और फिर ये सारी दुनिया उसके भीतर समा जाती है। और उसके बाद जब वो बोलता है तो पॉलीफनी जिसको कहते हैं ना, बाख्तिन, वो सबकी भाषा बहुत ध्वन्यात्मक, इसको मम्मट कहते हैं, कि सब तरह की ध्वनियाँ उसमें बोलने लगती हैं। तो कबीर की बोली में बोलूँ तो मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोय। तो ये लोक ही है स्त्रियों का, सामान्य स्त्रियों का, जो मुझ में बैठा है, मेरे भीतर के अंधे कुएं में बैठा है और मेरे माध्यम से बोल रहा है। इसमें मेरा अपना कुछ है ऐसा मुझे नहीं लगता। ये तो आपका औदात्य है, और ये मैं बहुत प्रामाणिकता से कह रही हूँ कि ये आपका औदात्य है कि आपने जो किया है, जो स्त्री लेखन, हालांकि मुझे ये कैटेगरी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेखन होता है, लेकिन फिर भी एक स्त्री होने के नाते आपकी जो चेतना होती है, मैं ऐसा मान कर चलती हूँ कि वो पुरुषों की चेतना से थोड़ी भिन्न होती है। और आपने जिस तरीके से लेखन किया है, क्योंकि मैं खुद एक समय अगर आप मेरे कॉलेज में होती तो आप मुझे पढ़ा रही होती, बिल्कुल। तो मैं साहित्य को उस दृष्टिकोण से देखते हुए, और आज जब मैं आपका साहित्य पढ़ती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक सम्मान था क्या है भी, जो एक सम्मान होना चाहिए लोक और श्लोक दोनों का, खास करके साहित्य और कला में, बिल्कुल, वो आपके लेखन में दिखता है। पर मैं थोड़ा भिन्न धरातल पर ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। अनामिका जी, आपका साहित्य पढ़ने के बाद एक चीज़ बहुत स्पष्ट होती है कि लोक और श्लोक का जो एक कृत्रिम अंतर है, वो आपके साहित्य में बिल्कुल उसका विलय हो जाता है। तो तृणधरी ओट की जो सीता हैं, वो एक पर्यावरणविद की तरह भी दिखती हैं, वो एक आम स्त्री की तरह भी दिखती हैं जिनका अपना शोक है, और वो एक महादेवी वर्मा की सशक्त स्त्री की तरह भी दिखती हैं, जिन्होंने अपने संघर्षों को पार करते हुए, ट्रांसेंड करते हुए अपनी एक दुनिया बनाई, जिसमें अपनी शक्ति का आह्वान करके उन्होंने अलग अलग समाज के अलग अलग वर्गों को चेतना भी दी और स्वयं भी उससे बहुत आर्द्र हुई। मैं आपसे ये सवाल बतौर अकादमिक जो आपकी हैसियत है, मैं उससे पूछना चाहती हूँ कि आज जो अंग्रेज़ी डिपार्टमेंट है या जो ह्यूमैनिटीज़ डिपार्टमेंट है अपने यहाँ, उसमें आपको लगता है कि लोक और श्लोक को उतना महत्व दिया जाता है जितना शायद उसको मिलना चाहिए, या हम सिरे से खारिज करने पे तुले रहते हैं? एक तो ब्राउन साहिब सिंड्रोम था जिसको हरीश त्रिवेदी जी ने तोड़ा जी। जब उन्होंने बहुत लंबी लड़ाई के बाद ऐसी परंपरा कायम की कि हम महाभारत भी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में पढ़ाने लगे, हम मृच्छकटिकम भी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में पढ़ाने लगे, और जीएन देवी का आदिवासी साहित्य भी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में पढ़ाने लगे। ये एक उन्होंने दृष्टि संपन्न पोस्ट कॉलोनियल मेजर माइंड की तरह उन्होंने ये डिपार्चर कराया। और उसमें बशीर की भी कहानियाँ थी मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में, जो भी अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन में दुनिया की चीज़ें थी वो पढ़ाने का
हमें मौका मिल गया अंग्रेज़ी में, और इसका जो रिस्पॉन्स हुआ क्लास में वो कितना अच्छा हुआ इसकी साक्षी मैं हूँ, क्योंकि वो मेरा बैच था। मतलब करीब 10 साल ये हमने किया, और अभी भी किसी हद तक हम ये किए जा रहे हैं। जितना क्लासरूम रिस्पॉन्स मिट्टी से जुड़ी हुई इन कृतियों को लेकर होता है, उतना और कृतियाँ जैसे कि वर्ड्सवर्थ की ही कविता के समानांतर या चिमनी स्वीपर के समानांतर अगर हम यहाँ के कूड़ा बीनते बच्चों को नहीं देखें, तो चिमनी स्वीपर में समझाना पड़ता है कि एक चिमनी थी, उसके भीतर बच्चों को भेजा जाता था, और उसके बाद उनको लंग कैंसर हो जाता था, वो जल्दी चले जाते। तो समझाना पड़ता है, ऑडियो विजुअल माध्यम से समझाना पड़ता है सब। लेकिन कूड़ा बीनते बच्चों के बारे में या इस यहाँ की जो स्थितियाँ हैं, अगर वहाँ के बारे में तुरंत तादाद में घटता है। तो तादाद में जो साहित्य का मूल सूत्र है, अंदर उतारना है, अगर आपको बड़े भाव अपने से लार्जर देन लाइफ बनाना है बच्चों को, तो जो इमीडिएट कनेक्ट है जो तादाद में है वो तो रहना ही चाहिए, और वो रूटेड अपने साहित्य, कम से कम तुलना करनी चाहिए। अगर आप अंग्रेजी साहित्य भी पढ़ा रहे हैं तो उसके पैरेलल जो आपके यहाँ का साहित्य है, लोक में भी का में भी, वो देने से निश्चित ही मुझे याद है कि मृच्छकटिकम में जो वसंत सेना का संवाद है उसकी प्रकृति से, उससे, या उस गणिकाओं के जो घर हैं और उसका जो वर्णन है, उससे जो तादाद में घटता था। फिर बिलवेड की कम्युनिटी लाइफ में टॉनी मॉरिसन का जो, तो उससे घना तादाद में था क्योंकि वो भी कॉलोनी थी। लेकिन उसके समानांतर हमें एकदम अंग्रेजी, जैसे मिडल मार्च हमने पढ़ाया। मिडल मार्च अच्छी कृति है, मेरी बहुत ही पसंदीदा कृतियों में है। लेकिन अगर हम बीच बीच में उसके अपना संपुट नहीं जोड़ें समानांतर, जो तो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि एक प्रीस्ट का घर, एक पार्सन का घर कैसे है, वो कैसे किसी की मृत्यु के समय वो जाता है प्रीच करने, और कैसे घरों में पादरी आते थे तो क्या होता था। जैसे कैसे एक आदमी है जो कि कुछ लेखक बनना चाहता है, ज्ञान का मतलब बहुत तरह से उस समय का यूटिलिटेरियनिज्म की क्रिटिक हमें समझानी पड़ती है वहाँ के दर्शन के माध्यम से। वहाँ समझानी ही चाहिए। एलियन जो है, जो हमारी पकड़ के दूर है, वो हमें समझाना ही चाहिए। लेकिन समझाने के क्रम में अगर एक कृति यहाँ की भी उस समय की रखी जाए तो समझना आसान हो जाता है टूल्स के रूप में। तो हमें ये बहुत बड़ी व्यवस्था लगी थी। बाद में लेकिन इस तरह का इंक्लूसिवनेस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा। पहले जब हम पढ़ने आए थे तो इस तरह की, मुझे याद है अरुंधति रॉय की उस समय किताब आई थी तो इतनी निंदा की थी। एक मिसेस कॉल थी और एक मिस्टर कॉल थे, वो उन लोगों ने उस अंग्रेज़ी की इतनी भर्त्सना की थी कि हमें ये लगा ही नहीं था कि अच्छा कुछ नए ढंग से अगर आया है तो इसमें भर्त्सना की क्या बात है। हालांकि मतलब मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, चूँकि मेरे अभी तुमने अचानक ही पूछा तो मुझे अचानक याद आया। तो इस तरह का जो एक था कि जो भी नया है, कालिदास का ही कहा हुआ है कि जो नया है वो हमेशा ही त्याज्य नहीं है, जो पुराना है वो हमेशा ग्राह्य नहीं है। लेकिन किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए, किसके पहले या किसी को छोड़ने के पहले उसका पाठ तो ज़रूरी है ही, है ना। वो सर्वोच्छेदन का तो मतलब ही नहीं है। आदमी के एक पाँव पीछे रहता है और एक पाँव आगे रहता है, तब प्रगति होती है। नहीं तो मेढक की तरह अगर साथ दोनों पाँव एक ही जगह रहेंगे और हम प्रगति करना चाहेंगे तो हमें मेढक की तरह उछल के चलना पड़ेगा। हमें आदमी की गति की जो शालीनता है कि एक पाँव पीछे एक पाँव आगे, एक परंपरा में, एक प्रयोग में, एक शास्त्र में, एक लोक में, एक पूरब में, एक पश्चिम में, इन बाइनरीज का कॉन्फ्लिक्ट जैसे हमारे दर्शन में ही है कि समशीतोष्ण। दर्शन क्या है? भारत में जो दर्शन जितने भी हैं उनमें एक ही बात है कि हमारे दिमाग का पेंडुलम है, वो हिलोरे ले रहा है।
उधर जाता है एक तरफ जैसे सुख की ओर, तो फिर वो इधर आ जाता है दुख की ओर उसी एंगल पर, फिर दुख से सुख की ओर। और ये सुख से दुख और दोनों बाइनरीज के बीच की यात्रा खत्म तब होती है जब वो बीच में आके टिक जाए, स्थित प्रज्ञता में आ जाए, तब वो आंदोलन बंद हो जाता है और आनंद की स्थिति घटती है, जो ना दुख की स्थिति है ना सुख की स्थिति है। मतलब उसमें निर्विघ्न होना आता है। एक क्रिटिक का जो माइंड, ऐसे तो दुनिया में सबका, लेकिन एक आलोचक का और एक अकादमिक का जो दिमाग है, उसको तो आनंद की स्थिति में होना ही चाहिए। उसको ना इधर इस दिशा से उस दिशा में एक्सट्रीम में नहीं दौड़ना चाहिए, क्योंकि उसको परखना है। उसको जैसे 3 बजे मेरे पिताजी कहते थे कि ब्रह्म मुहूर्त जो होता है उसमें सूरज और चांद, धरती से सूरज का प्रकाश और धरती का प्रकाश दोनों धरती से एक ही तरह की दूरी पर रहते हैं, तो वो भी समशीतोष्ण होता है और उस समय चेतना सबसे ज़्यादा ऊपर उठती है। तो किसी भी क्रिटिक को या अकादमी को उसी अनुभूमि में रहना चाहिए। और जो तुमने कहा कि शास्त्र और लोक या लोक और श्लोक, ये दोनों ही स्थितियाँ पढ़ के आकलन करके छात्रों को उसको समझाते हुए तब जाके उनके भीतर भी वो स्थिति पैदा करनी चाहिए जो गोल्डन ज़ीरो या गोल्डन मीन की स्थिति होती है, कि आप एक दृष्टा भाव में रह सकें। और किसी को निगेट करने के पहले तो निश्चित ही उसको उससे दोस्ती करनी पड़ती है। और कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं होता जिसमें कुछ न कुछ प्यार करने लायक ना हो। इसका विलोम भी सत्य है जी। ये फोटोग्राफर बैठे हैं, इनसे पूछो, दुनिया का कोई चेहरा ऐसा नहीं होता जो किसी न किसी एंगल से सुंदर ना हो। इसका उल्टा भी सच है जी। मनुष्य के लिए भी यही है। किसी भी कृति में कुछ ऐसा होता है जो आदमी को सबलाइम कर जाए। अगर कोई कृति इतने दिन तक ठट गई है, सस्टेन कर गई है खुद को कैनन में, और कुछ ऐसा भी होता है जो ठीक है जिसको हम छोड़ से डू अवे विद कहते हैं, लेकिन सर्वोच्छेदन का कोई मतलब नहीं है और बिना पढ़े किसी को छोड़ देने का भी कोई मतलब नहीं है। एडिटिंग कांस्टेंट होनी चाहिए। क्रिटिक का यही काम है, अकादमिक जगत का यही काम है। आपकी जो पुस्तक है तृणधरी ओट, वो मेरी फेवरेट, आपकी जो भी किताबें पोएम्स आपने लिखी उनमें सबसे एक बेहतरीन कृति मुझे लगती है, क्योंकि उसमें आपने डिवाइन और डोमेस्टिक का जो इंटरप्ले दिखाया है वो बहुत कमाल का है। और हिंदी और मैं कहूँगी रूटेडनेस अगर किसी में है तो वो बहुत बहुत आसानी से वो दिखता है कि कहीं ना कहीं भारतीय तंत्र पद्धति पर भी आपने उसमें बहुत गहराई से लिखा है और बहुत लेयर्स में वो तंत्र पद्धति आई है। ये अमूमन बहुत कम लेखकों ने ऐसा किया है अनामिका जी। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे ये प्रश्न क्योंकि भारत में तंत्र की अवधारणा आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो वो बड़ी पोलराइज्ड ओपिनियन होती हैं। या तो लोग तंत्र को हमेशा गलत निगाह से देखते हैं, या तंत्र का एक ऐसा पक्ष है जो कि इल्यूमिनेटेड इंटेलेक्चुअल रूप, बौद्धिक रूप से वो इल्यूमिनेशन नहीं हुआ है उसका। आपने कैसे साधा ये बड़ा दुरूह कार्य था। मेरे उसमें कुछ भी नहीं। मेरे परिवेश में ही मिथिलांचल में तिरहुत प्रमंडल में जहाँ मैं पैदा हुई, वहाँ हर घर में मैनस्क्रिप्ट के रूप में, हर पढ़े लिखे घर में एक मैनस्क्रिप्ट है जो किसी के बाप दादा ने, किसी गुरु ने छोड़ रखी है। और जो भी विग्रह घर में होते हैं, मिथिला पेंटिंग जिसको हम कहते हैं, वो एक तरह का ज्यामिति ही है। वो सृष्टि को सूत्र रूप में समझाने के लिए ज्यामितीय कुछ आकृतियाँ गढ़ ली जाती हैं। और उसके हिसाब से मुझे ऐसा बचपन से लगता रहा है, जो मेरे घर में लोगों से बातचीत होती रही या लोग आते रहे जाते रहे, तो मुझे कुल मिला के जो समझ में आया वो ये आया कि रेखा गणित के इस पे कुछ सूत्र विकसित किए गए हैं और पूरी प्रकृति और पूरा हमारे यहाँ की जो पूरी कविता है या पूरा जो हमारा साहित्य है वो एक तरह से प्रतीक कीलित कविता है।
और जितने भी महाभाव हैं उन्हें एक माँ का चेहरा पहना दिया गया है, माँ का या किसी उदात्त पुरुष का चेहरा पहना दिया गया। एक मेटाफर की तरह मैं 33 करोड़ देवताओं को देखती हूँ, सबके सब एक महाभाव हैं और उसको एक कविता की तरह ही स्क्रिप्चर्स को पढ़ा जाना चाहिए। मैं तो पोएटिक्स, एस्थेटिक्स और एथिक्स तीनों को सही ऐसी सखियाँ मानती हूँ जो हाथ पकड़ के नाचती थी और नाच रही हैं लगातार लास्य भाव में। तो मुझे उस तरह से सृष्टि को देखना, जैसे कि मुझे पिताजी ही कहते थे कि शब्द और अर्थ, ये शिव और शक्ति, यही शिव और शक्ति हैं। जो शब्द है वो शिव की तरह धीर बैठा है और जो अर्थ है उसके 10 आयाम हैं, वही 10 महाविद्याएं हैं। वाह। इस तरह से, और ये अर्थ कभी कभी, और जब वो किस्सा है जो हमारे यहाँ पूरी कहानियाँ मैंने बचपन में बहुत ही सुनी है, बहुत ज़्यादा, पिताजी से भी माँ से भी, तो वो कहते थे कि देखो शब्द रूठ भी जाता है। वो कहानी है ना कि पार्वती शिव से रूठ गई थी और रूठ के 10 दिशाओं में चली गई थी, तो 10 उनके रूप। इस कहानी का प्रतीक उन्होंने ऐसे खोला कि देखो शब्द है, शब्द के अर्थ हैं, अर्थ के कई आयाम हैं, तो इनके 10 आयाम हैं। और कभी कभी शब्द से अर्थ रूठ भी जाता है, तो रूठ के छिटक जाता है, फिर उसमें नया अर्थ उसको मनाना पड़ता है, कैजुअल करना। और बहुत ही सुंदर लालित्यपूर्ण ढंग से इन्होंने जीवन की गहराई और आपसी संबंधों की गहराई, एक सामुदायिक जीवन के जो आपसी संबंध होते हैं, मेरे तुम्हारे बीच के जो अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हैं या जितने मीठे संबंध होते हैं, उसमें जितनी तरह की उठापटक घटती है, या बृहत्तर धरातल पर जो राजनीतिक और सामाजिक संबंध होते हैं उसमें जितने ऊहापोह दिखते हैं। जैसे हमारे यहाँ जो सीता है, राम उनको पत्र लिखते हैं क्योंकि आदमी रीराइट करता है, रीइमेजिन करता है। तो मुझे हमेशा से लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि राम सीता को पत्र ना लिखते हो। तो मैंने कल्पना की है कि वहाँ पर दोनों ने सीखा बुद्धि करके आपस में राय करके वो अलग हुए हैं कि तुम राजकाज देखो और मैं जनता, वहाँ जंगल का समाज देखती हूँ जिसमें बहुत सारे अनाथ बच्चे हैं। किसके अनाथ बच्चे हैं? उन राक्षसों के अनाथ बच्चे हैं जो प्रतिशोध से ग्रस्त हो रहे हैं। तो उनको ज़्यादा ममता की ज़रूरत है, हमारी सीता कहती। और वो फिर उन बच्चों के लिए, और उन जो शूर्पणखा भी वहाँ आती है उसके बच्चे के लिए भी, और शूर्पणखा से भी उसका जो संबंध बहता है वो बहनापा और मातृत्व का बनता है। वो उनके लिए स्कूल चलाती है और उनको उनका प्रतिशोध कैसे ख़त्म हो, वो हमेशा राम को चिट्ठी में लिखती है कि युद्ध न कीजिए, हम पहले शिक्षा और संवाद से बात। तो ये जो फेमिनिन प्रिंसिपल और मैस्कुलिन प्रिंसिपल, जीवन के 2 प्रिंसिपल्स होते हैं, एक में अग्रेशन होता है, एक में संवाद होता है। तो उसमें संवाद वाली जो परंपरा है वो स्त्री की परंपरा है। सीता उसको प्रकृति को समझने के उपक्रम में ही सारा औदात्य, सारी वो करुणा और सारा वो संवाद में था, जो चिड़िया से भी हमारे यहाँ बतियाती हुई, जैसे पद्मावत में नागमती भी चिड़िया से बात करती है और पद्मावती भी बात करती है हीरामनसुआ से। हीरामनसुआ गुरु है। तो इस तरह से ये प्रतीक कथाएं मुझे आनंद देती थी। और बात प्रकृति से भी हो या मैन वुमन कॉस्मोस, जिसको लॉरेंस कहते थे, मैन वुमन कॉस्मोस का पूरा जो एक त्रिक बनता है, उसकी एक तरह से हमारे यहाँ बड़ी रोचक अभिव्यक्ति, और इसलिए मुझे वो अच्छी लगती थी और मैं उसको प्रतीक कथा के रूप से पढ़ती रही हूँ। ये मेरे परिवेश की है। मैं इसी पे थोड़ा सा इसलिए ड्वेल करना चाहती हूँ क्योंकि जब हम वाल्मीकि रामायण पढ़ते हैं तो सीता और राम जब वन गमन पे होते हैं और राम का आखेट करने का मन होता है, तो सीता लगभग एक तरह से उनको डांटते हुए कहती हैं कि आप वनवास में हैं, और जब आप वन के साथ तारतम्य नहीं बना पाएंगे तो आप वनवास का क्या मतलब। और फिर वहाँ पे वो पूरा डिस्कोर्स है कि कैसे एक राजा को कैसे बिहेव करना चाहिए, वनवासी को कैसे बिहेव करना चाहिए। सबसे इंटरेस्टिंग बात आपकी इस पुस्तक की ये है कि आपने उस कॉन्वर्सेशन को री इमेजिन
किया और मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में री इमेजिन करके आपने सीता को एक जो रूप दिया है, जो फेमिनिन, डिवाइन फेमिनिन का रूप दिया है, लेकिन आपने उसको आपने उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी उसमें बरकरार रखी है, जिसमें कि वो 10 महाविद्याएं जो कि एक तरह से अलंघ्य मानी जाती हैं एक डोमेस्टिक सेल्फ के लिए, वो उनका सर सहला रही हैं। हाँ। वो उनको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, जिसको फ्रॉयड कहते थे, 3 तरह की कॉन्शियसनेस की बात उन्होंने की, लेकिन चौथे लेवल पे युंग ने थोड़ा सा उसमें एक कहा कि सब कलेक्टिव सबकॉन्शियस होता है। तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस होता है, उसके धरती के नीचे या मन के नीचे के धरातलों की तो विज्ञान ने या मनोविज्ञान ने पश्चिम में कल्पना कर ली, कहा कि कॉन्शियस सेल्फ, फिर सबकॉन्शियस, फिर कलेक्टिव अनकॉन्शियस, वो युंग ने कहा। लेकिन उसके पैरेलल ऊपर भी कुछ होता है, कॉस्मिक अनकॉन्शियस भी होता है, सबकॉन्शियस भी होता है, कॉस्मिक कॉन्शियस भी होता है। ये हमारे यहाँ बहुत सारे जो गूढ़ ग्रंथ हैं जिनके अच्छे भाष्य नहीं मिलते, और मैं सौभाग्यवान हूँ कि मैं जिस पिता की बेटी हूँ वो मुझे बताते रहे थे कि ये भी होता है, मुझे कहाँ समझ में आता। लेकिन उसके अलावा मैं एक जैन परिवार के बहुत करीब रही थी। मेरे घर में जो नीचे वाला हिस्सा था उसमें एक पुराना जैन परिवार रहता था, उनके यहाँ जैन साधुएँ बहुत आती थी, तो उनके जो आगम ग्रंथ हैं बहुत कठिन है। मुझे अकेले में मिलते तो मैं कुछ नहीं समझती, लेकिन मुझे एक आचार्य वहाँ बचपन में मिली, 12-14 साल की मैं रही होंगी, तो उन्होंने अगम, उनको पता नहीं क्या, असल में वो लोग छोटी छोटी उम्र में साधवियाँ हो जाती हैं। मैं छोटी बच्ची थी और ये मैं उत्सुक रहती थी, गप करने में बहुत मेरा मन लगता था सबसे। तो उन्होंने पता नहीं क्या देखा कि मुझे उन्होंने बहुत सारे ऐसे सूत्र समझाए जो बाद में मैं देखती हूँ कि बहुत सारे जो बाबा ने समझाए थे उससे मिलती जुलती बातें। सत्य तो एक ही है ना। जी जी। अब उसको अलग अलग लोगों ने अलग अलग ढंग से परसीव किया। तो उस समय पहली बार, बाद में मैंने बुद्ध को भी बहुत पढ़ा, तीन जो भारत में जन्मे मतलब धर्म है उनको मैंने पैरेलल, मेरे ऐसे जीवन की कुछ पद्धति बन गई कि मुझे साथ साथ बहुत समझने का, और ये एकदम शुद्ध संयोग है, सुंदर संयोग मेरे जीवन का। मुझ में इतनी पात्रता नहीं थी, लेकिन मैं कुछ ऐसे लोगों से जीवन में मेरा संपर्क अर्ली हुआ जिसमें पिताजी थे, मेरे नाना थे, और ये गुरु साध्वी जो थी, जैन साध्वी, इन्होंने मुझे कुछ ऐसे सूत्र इतने सरल ढंग से समझाए कि मुझे अचानक जैसे बिजली कौंधती है वैसे मुझे उस समय खास नहीं समझ में आया होगा। लेकिन जब मैं स्वयं ये किताब उठा के कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी, तो एक साधारण घरेलू औरत हूँ मैं, मेरे दो बच्चे मेरे अपने हैं, परिवार में भी बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सबके दायित्वों के बीच इतनी दूर यूनिवर्सिटी में जाती हूँ, मेरे पास इतना न समय था न योग्यता थी कि मैं इसमें डूब सकती। लेकिन मैंने कोशिश की समय निकाल के, और जब मैंने किताब खोली तो मिस्टिकली मुझे वो सब सूत्र खुलते हुए नज़र आए जिसको उस समय मैंने आधा समझा था, आधा नहीं समझा था। ये जीवन का एक मेरे बहुत बड़ा सौभाग्य है कि जो मैं ऐसे कभी नहीं समझती, क्योंकि मेरी उतनी ट्रेनिंग का, मेरी है ही कहाँ ट्रेनिंग, नहीं है। लेकिन होता है जीवन में, कुछ अजीब सा होता है कभी कभी। अनामिका जी, आपकी कविताएं और आपका लेखन पढ़ते हुए, जो क्रिएटिव फिक्शन पार्ट है वो पढ़ते हुए, और अरुंधति सुब्रमण्यम को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे आप नॉर्थ की आवाज़ बनकर, वो साउथ की आवाज़ बनकर, और जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है आप लोगों का, जिस रूटेडनेस के साथ आप लोग दोनों लिखती हैं, बहुत बहुत सिमिलर लगता है वो। क्योंकि ये जो बात आप कर रही हैं कि पास्ट की प्रतिध्वनियाँ लेखन में आना, बिल्कुल। टोकरी में दिगंत पर जब आपने कभी किसी पॉडकास्ट में बात की थी तो आपने बहुत इंटरेस्टिंग इमेजरी बताई थी कि वो स्त्रियां हैं जो कि टोकरी लेकर जाती हैं और खाली टोकरी लेकर वापस आती हैं, हरी भरी सब्जियों से भरी टोकरी लेकर वो बस चढ़ती हैं ट्रेन में, और फिर वो खाली टोकरी लेकर वापस जाती हैं। ये जो महिलाओं के आपस के संबंध हैं, कलेक्टिव एक सोसाइटल संबंध जो हैं, उन संबंधों को अमूमन बहुत कॉन्फ्लिक्ट की दृष्टि से देखा जाता है। डोमेस्टिसिटी के सेंस में अगर हम देखें कि एक मदर इन लॉ डॉटर इन लॉ का संबंध हमेशा घर्षण वाला होगा, या एक सिस्टर इन लॉज का संबंध हमेशा घर्षण वाला होगा।
आपके यहाँ आपके लेखन की में जो स्त्रियां हैं वो बड़े समभाव से और बहुत ही एक दूसरे का ख्याल रखते हुए आर्द्रता के साथ एक दूसरे के साथ रहती हैं। मैं इसको फिर से डिविनिटी से जोड़ रही हूँ। जब डिवाइन कॉन्शियसनेस की हम बात करते हैं तो ये जो 10 महाविद्याएं हैं या जो नव दुर्गा हैं, सबका आपसी संबंध जो होता है वो कई बार ज़रूरी नहीं है कि बहुत प्रेमास्पद हो, बड़ा कॉन्फ्लिक्ट वाला भी संबंध होता है। आपने कैसे इसको साधा है अपने लेखन में? फ्रेंडली कॉन्ट्रडिक्शंस ना, मार्क्स खुद कहते थे कि समाज में फ्रेंडली कॉन्ट्रडिक्शंस तो होते ही हैं, खुद मार्क्स का कहा हुआ। और ये बहुत सुंदर विरोध मूलक, क्योंकि जीवन एक लीला है कि नहीं? कुल मिला के तो जीवन एक लीला है, और लीला में अलग अलग रूप आज हम स्टेज पे हों, लीला करनी हो, हम में तुम में कितना भी प्रेम का संबंध हो, अगर कॉन्फ्लिक्ट के रोल में है तो हम कॉन्फ्लिक्ट के रोल में हैं, लेकिन उससे हमारे भीतर का जो बहनापा है वो ध्वस्त नहीं होगा। समझ रही हो? तो भीतर तो प्रेम है, ऊपर आवरण चाहे जो हो। कॉन्ट्रडिक्शंस इसलिए खुद को 10 रूपों में तोड़ती हैं ना पार्वती, ये कहानी। तो हमारे जो, जिसको लाकां कहते थे मल्टीपल सेल्फ्स, कि हर सेल्फ मतलब हमारे अनंत सेल्फ्स का एक मतलब एक जोड़ है, और कभी कोई प्रोमिनेंट होता है, कभी कोई हमारे भीतर कम लड़ाइयाँ चलती हैं, एक लगातार ही हम आपस में डिबेट करते रहते हैं हर इशू पर। तो ये तो स्वाभाविक है, और अंतरंग संबंध अंतरंग इसीलिए होते हैं कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसमें कुछ भी पूछ लेने, कुछ भी कह लेने का वो होता है, शायद अंतहीन रंगों का संबंध होता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्पेक्ट्रम ना हो अगर, तो वो सुप्रीम वाइट नहीं होगा। वो मतलब कहीं ना कहीं कोई प्रिज्म तो रखा है जो सफेद किरण को 7 रंगों में तोड़ के ही लाया है, और फिर से वो 7 रंग सफेद हो जाते हैं। अगर अंदर की एक बात है कि हमें नफरत किए बिना डिबेट करना है। दुनिया में ये एक बात मैंने बहुत जल्दी समझ ली थी कि खौलते पानी में चेहरा नहीं दिखता, इसलिए झील होना पड़ेगा। सामने वाले को अगर चेहरा दिखाना है तो अगर हम खौल जाएंगे तो वो अपना चेहरा नहीं देख पाएगा। तो हमें तो अपने को किसी तरह खौलने से बचाना है, रिस्पॉन्ड करना है, रिएक्ट नहीं करना है। थोड़ा सा दम साधना, जिसको दम साधना कहते हैं, वो दम साध के उसका आवेग निकलने तक इंतज़ार करना। तुमने जो सास बहू की बात की, अगर इतना एक उदाहरण से समझाती हूँ, अगर नई आने वाली हमारे भी यहाँ और विश्व भर में एक यौवन और रूप को इतना केंद्रीय भाव बना दिया गया है स्त्री के जीवन का, कि जब यौवन और रूप जाने लगते हैं मेनोपॉज के समय में, उस समय घर में एक लड़की आती है यौवन और रूप से दमदमाती हुई, और जिस बच्चे के सहारे अपने का मुंह देखते हुए ज़्यादातर स्त्रियां जीवन काटती हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन बहुत कम लोगों का उतना उत्कृष्ट होता है जितना होना चाहिए। तो सारा जीवन आपने उपेक्षा झेली है, और वैसा जीवन नहीं झेला जैसा आपकी बहू मान लीजिए आके झेल रही। नई लड़की है, उसका अपने पति से ज़्यादा घना संवाद है। वो लड़का आपने ही तैयार किया है जो इतना खुले मन का है कि अपनी पत्नी को उस पर, तो वो एक बूढ़ी होती हुई औरत जो अब रूप के कारण भी केंद्र में नहीं है, और उसे लगता है कि वो पावर पॉलिटिक्स वैसी ही करे, और उसको शिक्षा भी अब मतलब शिक्षित होगी या भक्त टाइप की होगी, तब तो वो अपना सब्लिमेशन करके उसमें चली जाएगी, उस संसार में किताबों में रहेगी या कुछ ध्यान करेगी। लेकिन अगर उसको शिक्षा भी नहीं दी गई है तो उसको एक अजीब अतृप्ति, मैंने बहुत लोगों को देखा है, फिर उसको समझ में नहीं आता है तो वो एक वही पेट्रियार्की के वही मूल्य आत्मसात कर लेती है, और वैसे ही बॉस बनना चाहती है जैसी बॉस से वो लड़ती हुई इतने दिनों तक रही थी। अगर मनोविज्ञान के सहारे हम डील करें तो हर संबंध को कि वेयर इज शी कमिंग फ्रॉम, ये एक सवाल अगर हमेशा हम पूछते हैं, अगर हमें कोई लगातार, इसका उत्तर मुझे ना बुद्ध में बहुत अच्छा, बुद्ध का जो अंतिम सूत्र है लोटस सूत्र, मतलब पुंडरीक सूत्र, उसमें इसका उत्तर बहुत सुंदर है। उसमें वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगातार कोई कांटे चुभा रहा तो समझो कि कहीं उसके भीतर कोई
कांटा चुभा हुआ है, और उसको धीरे से निकालने की कोशिश करो वो कांटा। तो जितना रिया वो मतलब कहने का मतलब उनका जो भी कहते हैं उसको एक अगर मेटाफर में कहें तो कहते हैं कि तुम अपने जीवन की स्विच बोर्ड दूसरे के हाथ में नहीं करो, देने दो उसको, आभास मत कराओ कि तुम्हारे जीवन का स्विच बोर्ड उसके हाथ में है। नहीं तो वो लगातार तुम्हें ऑन ऑफ करता रहेगा, खेलने लगेगा। तो ये सब कुछ धीरे धीरे कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, कुछ गुन के जो सूत्र सीखे वही मैंने जीवन में लागू किए। Your collection of poems, Tokri Mein Digant, which got you the Sahitya Akademi Award, and that's when I got introduced to your poetry. I see. And then I, of course, explored anything and Yes. everything written by you. It is very interesting that the theory asks, "कौन से द्वार पर बैठे हो निर्वाण?" Yes. And I think that question, the framing of that question itself makes me emotional. Because it is about women who are within a particular setup, who are trying to negotiate with it, Right. trying to transcend it, Yes. and somewhere agreeing with the boundaries also. No, they are actually, whoever is on a quest, Shubhrashta, generally wants to transcend the boundary till till he or she thinks now the journey without doesn't mean anything. We must trace our steps and step into our own being. So that's the second phase. In the beginning, the grass on the other side looks greener. So for a woman, I'll tell you something very interesting that came to my mind right now. Whenever in trigonometry, we had a very, very peculiar kind of a sum. There used to be a formula pi r square, and there was an image there because I was oriented basically to poetry, so even in mathematical problems I saw poetry. So there was a particular question there where they said that the cow or the goat is tethered to a post, and this is the length of the rope. So how much land can she cover grazing? So I always thought women, how much it depends on her. Why will she graze the whole of it? But later on, it also gave me the idea of a woman being tethered to one post. A woman at the window trying to trace the, whatever is happening in the white sky. So the primal instinct is to go out and explore whatever one can. Whoever is tethered to a post really wants to venture out. And you remember in Srirpatra, Mrinalini writes a letter. Tagore was very wise that way. He knew a woman's heart. She writes a letter to her husband where she says that whenever spring descended on the earth, I could feel its presence only in the moss that grew greener. In the space where women wash utensils in an angan, in a courtyard, there is generally a moss coming, there's space which is covered with green moss. So she writes that it grew greener. I was not allowed to venture out I also was an Asuryam Pasha for some time. So I lived in that dark space, and only there I could trace the presence of spring when suddenly the moss appeared greener. I was not allowed to venture out into the garden and see whether it has actually arrived. So that microcosm that is there within a space of confinement generally wants to expand. In women's psyche, there's an angst. I've read some of the travelogues that the early women travelers like Pandita Ramabai and Hardevi and others who, when the Suez Canal opened, there were many British women travelers who came from there. And
From here also very many women traveled. So in that, that was, and Rahul Sankritan has written a very, very interesting novel on Stree Ghumakkad. So, when a woman transcends this space, actually wants to transcend this space of confinement, she really wants to go beyond everything. But there comes a point when she says, okay, fine, this is it. Then she traces her steps back and enters her own being. Now, from the cosmos to the cosmos within, to the wider cosmos to the cosmos within, is a whole journey. And poetry covers that. Not only in me, in everybody who ventures to write. This is generally, when you have a moral inquiry haunting you, you look for answers everywhere, in the world without and then in the world within. And finally, when you sit within yourself and recollect in tranquility, to borrow that phrase from Wordsworth, when you recollect in tranquility whatever you observed in the wider world, then only you know, okay, fine. So whatever you gather in your subconscious becomes a part of memory, not only personal memory, but also racial memory, evolutionary memory, genetic memory, call it whatever you want to call it. But women become the custodian of that memory because they think that they are, and they are actually, because this between Julia Kristeva and Nancy Shadarav and other psycholinguists have now proven it beyond doubt, that women's language has greater pockets to hold. They are like kangaroos, mother kangaroos holding their children in their lap. Not only their children, but all the racial memories, so which are interlinked with personal memories. So whatever they gather gets reflected in the joy and thrill of the language they write in. And they don't forget a single bit of whatever has gone into their ears, has a throbbing presence in their writing. So that's how the journey within and without is covered in each space in women's writing. While you were speaking, I was just taken over by that one imagery of the woman not being allowed to venture out. And in the domestic space of washing utensils, yes, moss grows up. Right. So essentially, wherever women are, however much of a dark and a dingy space you confine them to, right, they always evoke a fertile ground for something to to look up to. Yes, to look up yes, to. Yes. And this is the survival instinct. How do you survive if you have? And also, women have always had nature as a husband substitute. This is what I keep telling people. In Vidyapati, there is a very famous line, Piya mor balak, hum taruni, Piya leli godak, chaleli bazar. It's about a woman, a 16-year-old girl, or 18, maybe 16, maybe 12, who knows, who is married to a 2-month-old baby because, she has crossed the sanctioned age of marriage. And the father can't wait any long, and the father doesn't have the resources to marry her off in a proper family, so, and to a proper groom. So he just takes some baby from somewhere, and she said, you are married to this man, to this baby boy. Now she laughs. There's a very beautiful depiction, and she says, okay. And then she holds her husband in her lap, 2-year-old baby, and she goes to that marketplace, and then she talks to that husband. And then that, you talk to your nana, if he showered your company on me, he should have also given you some cow. I would have given the cow's milk and you would have grown big soon. Something of that kind she says in the later half of the poem. But I take it as a metaphor. I still think that most of the women still treat their husbands, or made to treat their husbands, as their babies.
because the sophistication level of an average man is, of course, much lesser than that of an average woman. I'm not talking about exceptions, but due to very many reasons. So women are basically very lonely being, even in marriage. And so at that, what would you do? You would take nature as the husband substitute. You would start talking your secrets out either to your husband or a girlfriend or anybody who is there available. Now that in the age of deforestation, we can't even claim that we'll have a tree around us to talk to. But women have been talking to trees and flora and fauna and rivers, and they have been calling them all gods, and they've been confiding, they've been telling their secrets. So whatever, nature is an husband substitute in most of these cases. So man, woman and nature, the nature becomes the third, some kind of a person where you could actually open up. So what were you asking? You just come to that? The idea that wherever you relegate a woman to, she finds space, actually. Yeah. So जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया. If there is no one to talk to in the immediate circle, she turns to nature. She turns to the animal world. She turns to even the inanimate objects, and this is how they make the most of life. Till if she has children, then she waits for her children to grow up, and then she talks to them. Otherwise, nature is actually a place where she can say things that she would not dream of sharing even with the mother. In Mirabai, there is a line, Mairi mein kaise kahun peer apne jiya ki. She is addressing her mother, Mairi, and then she is asking her, kaise kahun? I can't even tell you. There's somebody to turn to, and maybe nature. And which is why all those beautiful Chhat songs, yes, dedicated to Ma Ganga. Yes. Where there's a dialogue, there's rage, yes, there is resolution. Right. And Parvati, when Shiv goes on all these long, tapasya, she creates a child out of her own without any his consent, yes. Without any consent from Shiv, without any contribution from Shiv. These are all very great constructs, even if you treat them as constructs, even if people who do not have faith in these things, who think that it's all an energy and it's only a metaphor. Even the people who, even if they imagined such things, were people of magnificent dimension. This you must consider. And coming back to Tokri Mein Digant, I think that what I find fascinating about the title is what you just said, the entire philosophy of looking at Digant in a Tokri. Yes. Of looking at Dishaon ka ant is also Digant. Right. आदि से अंत तक उस टोकरी में जो खुद ही झीनी है. Yes. So what is that tokri? Actually, we hold the Digant there, even if it's a void. I told you later. Later if I have time, I'll also explain how. But void is a great space. It subsumes all. So when your mind is actually in a meditative state, it's of course in a state of golden zero, but it holds everything on the fringes. So this is all inclusive. There is a very interesting phrase in English, all alone. I always wondered how you are alone and all is included in you. All alone. True. Sarva Samaveshi. True. So this is it. Whenever I speak to you, whenever I read your works, अभी आपने बात की वो all alone की जो बात की, there's a very strong reference to Kali in everything you say. Yes. Because she depicts that. Yes. Please expand a little bit on what Kali means to you. Kali is time consciousness. I read them all as metaphors. There are 10 and more kinds of women, and there are 10 and more
kinds of vrittis or tendencies in human heart, and you give them a mother's face because it's easy to identify with these motherly faces, which are in all kinds of moods. So these moods, and when you are in a particular state of mind, you feel identified with a particular kind of face. And time consciousness is something, time and space. These are the two things we are actually tethered to. We can't go beyond that. So time and space, that is Bhuvaneshwari represents the space within and the space without. So you are rooted somewhere and your mind is flowing, and every space has a particular kind of time tethered to it. So this whole idea of looking deep into the eyes of time and surrendering your ego before time, because time alone will set it right. Time is a healer in that sense. Even in English we have the expression that time is the best healer. But it's not only a thing of healing. You are healed and then you become a part of the time consciousness. You rise to a level where you can subsume everybody's agony, and where even that kind of a fierceness leads you to a kind of to that level of transcendence where nothing else matters. Just being with your own self matters. Just like the stars you are. The stars are there. They're neither here nor there, and they're eternal in their own company. So when you have that kind of satisfaction flowing through you, that you are complete in your own company, then you are in that kind of consciousness. I think Kali consciousness. Yes. Destroying all kinds of barriers, which women's writing is actually trying to attain, because the cosmic and the commonplace, the personal and the political, the sacred and the profane, these are binaries which hug, which enter into a deep embrace in women's metaphor. So I actually find these binaries coming together. Like what happens in a metaphor? You compare one level of reality to another level of reality, and you actually juxtapose two levels of reality, and it becomes one. So the high and low it's gone. That the hierarchy between one, personal and political, for instance, or home and the world, for instance, or cosmic and the commonplace, for instance, subsides. So metaphors are a great thing, and at least in women's metaphors you see this domestic and what to say, commonplace and cosmic coming together like sisters in eternal embrace. There is no hierarchy there. I want to carry on this conversation till eternity, but I think we should respect time, and Yes. Wanted to know if you were to recommend to your younger readers some contemporary poets and writers. Who are your favorites? Who do you go back to, and who do you exchange notes with? I really want to build an anthology of the poems that have ignited, that made me feel born afresh. I can name a few writers, but more than those writers, there are particular poems which have stayed with me in the gloomiest moments of my life, and they have delivered me afresh. I feel they have taken me back to their womb, and they've delivered me afresh. The way my mother used to do, I've always, whenever I put my head in her lap, I would think, Ma, zip
माँ जिप होता तुम्हारे womb में तो I would have gone back. I'm fed up of this world. I want to enter your womb once more. And mother actually, gave birth to me, a new birth to me every day when she put her hand on my head. So mother element, feminine element has this regenerative force. First you enter the womb, you surrender yourself, and one touch that means the world to you. The touch that would say that she knows it all and keeps quiet. The whole assurance that she needs you, she knows you, even if the world doesn't know you. She knows you. And she touches you. That touch. In Sanskrit, there is an expression, marma bhedi, marma sparshi. So that is the marm, the essence of the aporia where it is touched. That regenerates you, delivers you afresh every day. There was a phase in my life when I told my mother that your mother, mothers give birth only once, but you're a mother that has given birth to me every day. Whenever I come tired, exhausted, fed up with the world, you just touch me and I'm born afresh. So poems also have been, have been mothering me that way. They've been pulling me into their darker circles, into their wombs, and then delivering me a strength. Emily Dickinson is one poet. Akka Mahadevi is another. And I was very fond of Janabai for some time. Then Emily Dickinson ki baat to I think Elizabeth Bishop, at least poems like The Art of Losing is Not Hard to Master, Anne Sexton too, Sylvia Plath too, but in snatches, Andreen Rich. These poets, women poets, have been my godmothers in a way, because I can see the language opening up like a womb and subsuming me there in the subconscious and delivering me afresh. So that kind of organic unity I feel with that kind of expression. And so these are some names that often I told you, but there could be more. Anamika ji, it is really truly an honor speaking with you, because the way you transcend the everyday and it is not a pretense transcendence of intellect. It is actually an engagement with ideas at that लेवल जिसको आपने कभी मुझे किसी दूसरे कॉन्टेक्स्ट में समझाते हुए वो परा पश्यंती वैखरी जब समझाया था तो ये एक्चुअली उस तरह की बात है. मैं इस संदर्भ में आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब आपका नाम साहित्य अकादमी के लिए सामने आया, आपको पुरस्कार मिल चुका था, तो जैसा अमूमन किसी भी लेखक के साथ होता है, मैं स्त्री लेखिका नहीं कह रही हूँ, मैं अमूमन किसी भी लेखक के साथ होता है, वैसा आपके साथ भी हुआ. लेकिन मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि आपका लेखन एक्चुअली अगर कोई गहराई से उसकी आपके लेखन की राजनीति देखे तो वो इन सबसे ऊपर उठ चुका है. तो आपने कैसे देखा उस पूरी कंट्रोवर्सी को? और लीला समझ के दुनिया देखना मुझे बहुत दिन पहले आ गया था. एक समय था जब मैं चकित होती थी कि ऐसे कैसे कोई किसी को डिग्रेड करता है, लेकिन अब इस उम्र में तो एक लीला की तरह दृष्टा भाव से दुनिया देखना आ जाता है. तो उस समय माँ जीवित ही थी तो हम हंसने लगे, बोले माँ देखो, तो माँ मेरी एकदम मृत्युशैया पर थी. अब तो कहना पड़ेगा कि मृत्युशैया पर थी, लेकिन वो गिर गई थी और मैं सारा दिन उसी के पास बैठी रहती थी. तो जब वो थी मेरे जीवन में तो मुझे कोई चिंता ही नहीं थी, क्योंकि उससे सब कुछ कह देते थे और वो एक बार हंस देती थी तो मेरा सब धुल जाता था. तो माँ ने कहा कि देखो ना माँ क्या हो रहा है. मैंने कहा उसने कहा कुछ भी नहीं बेटा, कुछ होने से कुछ नहीं होता. उसने इतनी अच्छी एक बात कही, बेटा कुछ होने से कुछ नहीं होता, अपनी राह चलनी पड़ता रहता है, वो ठीक है, इधर उधर कुछ कुछ होता रहता है, उससे क्या है, तमाशा है. तो ये उसके बाद मेरे भीतर ही मेरे पिताजी की भी
एक पंक्ति है पहले की, क्या पुरस्कार क्या तिरस्कार, दोनों ही माता के दुलार। दो चार बढ़ाते आलोचक, दो चार बनाते समाचार। तो ये इस भाव से, मतलब ये तो इस भाव से अगर कोई पीआर पीआर फर्म हो तो उसके लिए सूत्र वाक्य ये सब ऐसा ही है। चलो जी। जो यंग लेखक हैं, लेखिकाएं हैं, जो आपसे प्रभावित भी रहते हैं, आपसे आपसे कुछ रिकमेंडेशन अगर मांगे कि भाई कविताएं लिखी कैसे जाती हैं, या अच्छा साहित्यिक प्रोज गढ़ा कैसे जाता है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे उन्हें? बहुत ध्यान से किसी की बात सुनना और बहुत गौर से देखना, जो भी अच्छा लगे उसके पास जाना और उसके एकात्म हो जाना। वो चाहे चिड़िया हो, चाहे कोई हो, जो भी लगता है कि उसने उसके भीतर का दरवाज़ा खोल दिया हो, जिसका भी प्रेजेंस, क्योंकि अंदर उतरना है। और जिसके भी प्रेजेंस से आपको लगता है कि आपके भीतर कोई खिड़की खुली, जो बहुत दिनों से जकड़ी हुई थी, वो खुलने लगी है, तो उसके पास जाके चुपचाप बैठ जाना चाहिए। और चुपचाप बैठना बहुत बड़ी चीज़ है। अगर नदी में पाँव डाल के बैठ रहे हैं दो लोग एक साथ, मुझे गोरकी की एक, शायद उसके विश्वविद्यालय में या उसके मेरे बचपन में एक कोई इमेज था, जिसमें एक थका हारा बच्चा है, फैक्ट्री से काम करके आया है, और एक दूसरा कोई है जो कि अनजान है, वो आके वहाँ बैठ जाता है उसके बगल में, उसको वो अच्छा लगता है, उसके साथ बैठ जाता है, और दोनों कुछ नहीं बोलते आपस में, लेकिन एक साथ सूर्यास्त है, वो साथ साथ देख रहे हैं। वो इमेज, हालांकि वो एक कहानी का हिस्सा था, लेकिन इमेजेस मेरे भीतर रह जाती हैं, और वो इमेज मेरे भीतर अंतरंगता के उत्कर्ष के रूप में रह गई, कि दो अनजान लोग हैं, नदी में पैर डुबा के साथ बैठे हुए हैं, सूर्यास्त देख रहे हैं, कोई किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, मगर साथ है। तो ये मौन का साथ जो होता है ना, वो जो भी अच्छा लगे। वो स्त्रियों के लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि स्त्रियों को लोग आत्मा के रूप में या प्रज्ञा के रूप में या मनुष्य के रूप में कम देखते हैं, नहीं ही के बराबर देखते हैं। तो स्त्रियों में तो ये बाधा हो जाती है कि आप किसी स्त्री के पास ही वैसे बैठ सकते हैं। लेकिन लड़कों को ये सुविधा है, जैसा हमारा समाज है, कि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव जंतु, एक पेड़ ही सही, अगर आपके भीतर कोई स्पंदन जगाता है, आपके भीतर जो एक सोया हुआ शिशु, खोया हुआ शिशु है आपके भीतर के जंगलों में, उसका पता आपको दे रहा है, आपको कि किसी गुफा के द्वार पर खड़ा कर रहा है, तो गौर से देखने और गौर से सुनने के बाद ही, या गौर से पढ़ना, तीन चीज़ें हो सकती हैं, गौर से पढ़ना, गौर से देखना, गौर से सुनना। गौर करने का ही बस इल्म होता है, और प्रेम से भर के ही आदमी किसी को गौर से देखता है। तो या इस तरह से देखो कि गौर से सुनने, गौर से देखने, गौर से पढ़ने से भी प्रेम होता है, दोनों बातें सच। जी। जैसे भी जिस रास्ते खुला हो, आपने गौर से किसी को पढ़ा, सुना हो, देखा हो, तब प्रेम जगा हो, या प्रेम से आपने और भी देखा, गहरा सुना हो, और भी गहरा देखा हो, और भी गहरा पढ़ा हो, क्योंकि प्रेम की आंखें मिल जाने पे वो गहराई देखने की आयाम बढ़ जाता है, सुनने का भी, और कैजुअली पढ़ना और प्रेम से तो बहुत ही फ़र्क पड़ जाता है। वो धीमे धीमे उसमें आप पास रहिए तो एनर्जी ट्रांसमिशन होता है, एक सिनर्जी सी बनती है, और दर्शन भी लगातार कहीं न कहीं से सुनना, बोलना। एक सिद्ध व्यक्ति जिसने जीवन को
जीवन की किताब पढ़िए, उसके पास बैठना। कोई ना कोई परिवेश में ऐसा मिल ही जाता है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं मिलता, अब ये थोड़ा सा कठिन हो गया है क्वेस्ट, लेकिन फिर भी अगर आँख खुली रहेगा तो 2-3 लोग मिल ही जाएंगे। और बहुत नहीं कोई मिले तो बहुत सी किताबें, ऐसा कोई ना मिला जिनसों रही ये लागी, सब जग जलता देखे अपनी अपनी आगी। अगर ऐसी भी आपके चित्त की अवस्था हो जाए कि जीवन में आपको ऐसा नहीं भी मिला जिनसों रही ये लागी, जिसके साथ आप लग कर बैठ सके, तो किताबें हैं ना, प्रकृति है ना, दर्शन है ना। और एक बात और मुझे समझ में आई अपनी ज़िंदगी में, जो मैं तुम्हें बता देती हूँ, जो मैं सब नए लड़कों को बताना चाहती हूँ, लड़कियों को, कि अगर अपने जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख हो, कोई कमी हो, परेशानी हो, तो दूसरे के जीवन के दुख दूर करने में लग जाने से अपने जीवन की परेशानी बिसर जाती। किसी की नौका अगर डूब रही है, उसको बचाने, किनारे लगाने में आदमी को अपना किनारा भी मिल जाता है। तो जब दुख की घड़ी विकट हो जाए, और जो भी व्यक्ति संवेदनशील होता है वो कभी अपने से, अपनी आसपास की घटनाओं से, कभी दूरवर्ती घटनाओं से दुखी तो होता है। ऐसे समय में अपने दुख से उबरने का एक ही उपाय है कि आदमी के दूसरे के दुख दूर करने के में लग जाए, दूसरा रहे ही नहीं उसके लिए, फिर धीरे धीरे खुद ही सहज हो जाता है सब कुछ। इस भाव से, सनातन खोज की भाव से, हर व्यक्ति को अगर इस तरह से देखो कि उसमें कुछ न कुछ प्रेम करने लायक है, वो क्या है ये ढूंढें, और उसके जीवन में जो समस्याएं हैं अगर दूर कर सकते हैं तो दूर कर दें। तो हर व्यक्ति कहानियों का एक बहुत, मतलब हर व्यक्ति का जीवन एक बड़ा उपन्यास, एक बड़ी कविता की तरह सामने आ जाता है। और जो भी इमेजेस आपके आसपास, और जो भी अंतर संगीत आपके आसपास है, अगर आप उसको गौर से सुन के अपने लेखन में उतार रहे हैं, तो जीवन को एक दिशा तो मिल सकती है। रेवरेंस से देखना चाहिए, और जिस स्रोत से जीवन सामने आए उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रेम और आदर के भाव से देखना, सुनना, पढ़ना किसी एक अच्छे लेखक के होने की पूर्व कल्पना है। मुझे लगता है इस बहुत ही सुंदर विचार के साथ, अनामिका जी के विचार के साथ, हम आज की इस बातचीत का समापन करते हैं। अनामिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने समय दिया। शुभ्रा, बहुत धन्यवाद।